Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 8 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेम द 4 इंडियन वीमेंस जिन्होंने फीचर किया फोर्ब्स 2023 वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन की लिस्ट में, राइट। तो कौन है ये 4 वीमेन? निर्मला सीतारमन, रोशनी नादर मल्होत्रा, सोमा मंडल एंड किरण मजूमदार शॉ। अगर इनकी बात करें, हम जानते हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, वो है निर्मला सीतारमन। फिर अगर बात करें सोमा मंडल की, लेट मी शो यू यार, ये वो 4 लेडीज हैं, यहां से आपको ठीक समझ आएगा। निर्मला सीतारमन मैम की रैंक थी 32nd, राइट। एंड रोशनी नादल मल्होत्रा, अगर हम इनकी बात करें तो ये कौन है? चेयरपर्सन ऑफ HCL टेक, इनकी 60th रैंक रही। सोमा मंडल की बात करें तो ये फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनकी 70 रैंक रही। किरण मजूमदार शॉ, ये 76th पोजीशन पे आई, एंड ये फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है ऑफ बायकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे टॉप किसने किया? उर्सुला वॉन देर लेन, राइट, जर्मनी से बिलोंग करती हैं। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन क्रिस्टिन लगार्ड, और थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं कमला हैरिस, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है USA की। देन याद रखेंगे ये 20th एनुअल रैंकिंग थी, राइट, 20th एनुअल रैंकिंग थी ऑफ दिस वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन, करेक्ट। फोर्ब्स के द्वारा ये रिलीज की गई थी, ये भी मार्क करके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑन क्वाकरेली साइमंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी 2024। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की रैंक क्वाकरेली साइमंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से, इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से फॉर 2024 क्या रहेगी? तो DU आ जाता है 2020वें पोजीशन पे। एंड ऑल द इंडियन यूनिवर्सिटीज, टोटल 56 इंडियन यूनिवर्सिटीज इस रैंकिंग में आती हैं, उनमें से जो टॉप पर रहा वो भी DU रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक। फिर इसी के साथ साथ पूछ सकते हैं कितनी इंडियन यूनिवर्सिटीज इस लिस्ट में थी? 56। इस लिस्ट को टॉप किसने किया? इंडिया की बात की जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, और अगर पूरी लिस्ट ने किस में से टॉप किया, पूरी लिस्ट में से किसने टॉप किया? वो है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, जो कि कनाडा में, ठीक है। मार्क करेंगे इसको। यहां पे आप देख सकते हैं एशियन यूनिवर्सिटीज में से तो DU ने टॉप किया, राइट। DU ने 30th पोजीशन पे रहा इन एशियन यूनिवर्सिटीज। अगर यहीं पे इंडियन यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो DU की रैंक रहेगी फर्स्ट। नेक्स्ट, विच कंट्री अकाउंटेड फॉर 66% ऑफ द मलेरिया केसेस इन WHO SEAR रीजन इन 2022। तो इंडिया में यहाँ पे 66% केसेस देखने को मिले ऑफ मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? मॉस्किटो बाइट से हो जाता है,
राइट, ये एक तरह का फीवर होता है। एंड दो हमें डिक्रीज देखने को मिला 11.99% केसेस का बिटवीन 21 एंड 22 इन द रीजन्स ऑफ बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, यहाँ पर हमें इंक्रीज देखने को मिला। और 66% केसेस इन दिस WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजन में से इंडिया में 66% केसेस देखने को मिलते हैं एज पर द रिपोर्ट रिलीज बाय WHO, जो थी वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट फॉर 2023। नेक्स्ट है AIIB। AIIB क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्होंने अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? तो वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो AIIB एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक MOU साइन किया गया ताकि जो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको प्रमोट किया जा सके। अब देखो, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यहाँ पे क्या काम करेगा, ये अपने स्ट्रेंथ्स को, अपने रिसोर्सेज को लाएगा ताकि एक लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट आ सके फॉर द पीपल्स लिविंग इन एशिया एंड द नियर बाई एरियाज। करेक्ट। सिमिलरली UNDP क्या करेगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो फाइनेंसिंग होगी इन प्रोजेक्ट्स के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए, उन फाइनेंसिस का ध्यान आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम रखेगा। राइट, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये MOU साइन हुआ। AIIB की बात करूँ, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में रहेगा। UNDP की बात करूँ, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। एडमिनिस्ट्रेटर कौन रहेंगे UNDP के, वो है अकीम स्टाइनर, एंड 1966 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमी एंड बिजनेसेस। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन्होंने रिसीव किया ऑर्डर वर्थ 3,915 करोड़ रुपीस। राइट, अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें, ये एक नवरत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। करेक्ट, इनको 3,915 करोड़ रुपीस के ऑर्डर सप्लाई मिले फॉर वेरियस डिफेंस इक्विपमेंट। यहाँ पे वो डिफेंस इक्विपमेंट मेन्यू दिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, एक ऑर्डर आया 580 करोड़ रुपए का फ्रॉम द इंडियन आर्मी फॉर द सप्लाई ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेटिक कंडक्टर ऑफ रडार्स। फिर एक ऑर्डर है 3,335 करोड़ रुपीस का, जिसमें से अगर हम देखें तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल AMC फॉर एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम, अनकूल्ड थर्मल इमेजर, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस, shortwave infrared payload, AMC for the integrated air command and control system, passive night vision binoculars etc. ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि इंडिया की GDP फॉर द फिस्कल ईयर 24, मतलब 2023 और 24 के लिए इंडिया 6.8% से ग्रो करेगा। पहले जो प्रोजेक्शन थी वो थी 6.5 से 6.7% के बीच में, बट अब प्रोजेक्शन कितनी है, वो 6.8%। ऑल्सो इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि जो ग्रोथ है आने वाले फिस्कल ईयर 25 में वो 7% से भी ज़्यादा हमें देखने को मिल सकती है। एंड इंडियन इकोनॉमी रिकॉर्डेड अ ग्रोथ ऑफ 7.7% इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 24। CII की बात करें तो डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और इस्टेब्लिश 1895 में करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस के ऊपर। राइट, तो अभी इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार अवार्डेड विद द करमवीर चक्र मेडल 2023। आई रिपीट, रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड की बात करें और चक्र अवार्ड की बात करें तो ये दो अवार्ड हैं। रेक्स कॉन्क्लेव के दौरान इन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये है इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार, इनको अवार्ड दिया गया करमवीर चक्र मेडल 2023 से। राइट, मार्क करके चलेंगे। और यहीं पे अगर मैं बात करूं आपके दूसरे अवार्ड की, जो कि है चक्र अवार्ड, जो कि आपका लेट मी टेल यू, कंफ्यूज नहीं होना है। एक है UN वॉलंटियर करमवीर चक्र अवार्ड। राइट, इससे सम्मानित किया गया है ओमी गुरंग को। राइट, इनको गोल्ड से सम्मानित किया गया। और ये UN करमवीर चक्र अवार्ड है ना, ये 3 कैटेगरीज में होता है, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। तो पहले इनको सिल्वर से सम्मानित किया गया था 2019 में, और अब इनको वापस से गोल्ड सम्मानित किया गया एट द 12th रेक्स कॉन्क्लेव इवेंट, जो भी हमें देखने को मिला था। ओमी गुरंग की बात करें तो ये सिक्किमीज फैशन डिजाइनर है एंड सोशल एंटरप्रेन्योर है फ्रॉम सिक्किम, एंड ये पहले पर्सन बने जिन्होंने बोथ गोल्ड एंड सिल्वर UN करमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया। राइट, इनको इससे सम्मानित किया गया फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल फैशन एंड प्रोएक्टिवली क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द क्लाइमेट चेंज इन द वर्ल्ड। फिर नेक्स्ट याद रखेंगे, अगर रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप की बात करें तो किनको सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से, करमवीर चक्र मेडल 2023 से, तो वो रहेंगे इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार। चलिए, राइट, और ये रेक्स करमवीर चक्र मेडल ये क्या है, ग्लोबल सिविलियन ऑनर है जो रिकॉग्नाइज करता है फॉर पीपल जिन्होंने एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया टू द ह्यूमैनिटी। द अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड इन पार्टनरशिप विद UN टू एनकरेज प्रोएक्टिव सिटीजनशिप। ठीक है। नेक्स्ट,
और ये जो रेक्स कॉन्क्लेव हुई थी, करेक्ट, ये 12th एडिशन था, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर 10 बीजेपी एमपीज इंक्लूडिंग 2 मिनिस्टर्स, इन्होंने रिजाइन कर दिया फ्रॉम द पार्लियामेंट आफ्टर विनिंग स्टेट इलेक्शंस, राइट। इसमें इंक्लूड है नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, रिति पाठक, दिया कुमारी, अरुण साव, गोमती साई, इन सब ने रिजाइन कर दिया, राइट। और हम जानते हैं अभी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में एंड छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जीत ली है, विक्ट्री मारी है, और तेलंगाना में कांग्रेस जीती है, करेक्ट। ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए साथ साथ। नेक्स्ट पे आते हैं एक्विजिशन एंड मर्जर्स। अभी गवर्नमेंट ने सेल किया 8% स्टेक इन अर्कॉन इंटरनेशनल थ्रू ओएफएस। ओएफएस होता है ऑफर फॉर सेल। तो गवर्नमेंट ने अभी इरकॉन लिमिटेड में अपना 8% स्टेक सेल करने की बात की। गवर्नमेंट कितना होल्ड करती है? 73.18% स्टेक होल्ड करती है। और इन्होंने यहाँ पे 3.76 करोड़ अपने शेयर्स सेल करने की बात करी, वर्थ 8%। नेक्स्ट, अंबुजा सीमेंट, इन्होंने कंप्लीट किया एक्विजिशन ऑफ शंकी इंडस्ट्रीज फॉर 5,185 करोड़ रुपीज, राइट। 5,185 करोड़ रुपए के लिए अभी अंबुजा सीमेंट ने इनका एक्विजिशन पूरा किया ऑफ शांगी इंडस्ट्रीज। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो ये अडानी ग्रुप ओन्ड कंपनी रहेगी, राइट। एंड इनके पास कंट्रोलिंग स्टेक है 54.51% अब इन शांगी शांगी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि गुजरात बेस्ड कंपनी रहेगी, करेक्ट। इसके अलावा याद रखेंगे अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, इन्होंने 141 मिलियन शेयर्स बाय करे ऑफ शांगी इंडस्ट्रीज लिमिटेड SIL एंड ईच शेयर 121.9 रुपीज के हिसाब से इन्होंने यहां पे बाय किया। नेक्स्ट, एनिमी प्रॉपर्टी शेयर्स वर 2,709 करोड़ रुपीज वर डिस्पोज थ्रू ई ऑक्शन। एनिमी प्रॉपर्टीज कौन होती हैं? वो इंडियंस जो कि पाकिस्तान चले गए या फिर चाइना चले गए, राइट, बिटवीन 1947 एंड 1962 के बीच में, उसको हम एनिमी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करते हैं। तो अभी गवर्नमेंट ने ई ऑक्शन के थ्रू बोली लगाकर इन प्रॉपर्टीज को डिस्पोज कर दिया, बेच दिया, एंड 2,709 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट करा। अगर देखें तो टोटल 12,611 एनिमी प्रॉपर्टीज थी, जिसमें से 19 प्रॉपर्टीज अभी यूपी में डिस्पोज की गई थ्रू ई ऑक्शन। 12,485 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि पाकिस्तानीज की हैं, एंड 126 प्रॉपर्टीज हैं जो चाइनीज की हैं, ठीक। नेक्स्ट है गूगल ने अभी लॉन्च किया उनका लार्जेस्ट एंड मोस्ट कैपेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी, राइट। जेमिनी काफी एडवांस्ड एक AI मॉडल अभी लॉन्च किया गया है 3 फेजेस में इसको, और 3 तरह का ये लॉन्च किया गया है। एक है अल्ट्रा, दूसरा है प्रो, जेमिनी प्रो, और दूसरा है जेमिनी नैनो, करेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। ओपन AI का क्या था? चैट GPT। गूगल का बार्ड भी था, लेकिन अभी इन्होंने जेमिनी नाम का अपना खुद का लॉन्च किया है एक AI मॉडल, करेक्ट। 3 साइजेस में आता है, जेमिनी अल्ट्रा, जेमिनी प्रो एंड जेमिनी नैनो। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। 7 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं UN इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। एंड सिविल एविएशन से जो हमारे वर्ल्ड में जो कनेक्टिविटी इंक्रीज हुई है, उसके बारे में हम इंपॉर्टेंस क्रिएट कराने का ये डे काम करता है। नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे। 7 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, एंड इट इज टू ऑनर मैन एंड वीमेन जो कि आर्म्ड फोर्सेस में ब्रेवली लड़े थे, टू मेक श्योर हमारी कंट्री को सेफ गार्ड रख सके एंड कंट्री के ऑनर के लिए। इसलिए आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे ऑब्जर्व किया जाता है 7 दिसंबर को। पहली बार 7 दिसंबर 1949 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट न्यूज आ जाती है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, स्टेट न्यूज। अभी ओडिशा के द्वारा अभी एक आमा बैंक नाम से एक स्कीम लॉन्च करी गई, ताकि जो गवर्नमेंट के या फिर जो ओडिशा स्टेट में जो रूरल एरियाज हैं, जहां पर अभी तक बैंक की सर्विसेज नहीं पहुंच सकी हैं, वहां पर ये बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाई जा सके विद द हेल्प ऑफ दिस स्कीम आमा बैंक। इसी के अंडर याद रखेंगे ओडिशा गवर्नमेंट ने 6 पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ टाइप किया, SBI, PNB, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। इन 6 बैंक्स के साथ यहां पर इन्होंने टाइप किया ताकि रूरल एरियाज में जो बैंकिंग सर्विसेज हैं वो पहुंचाई जा सके, ठीक है। मार्क करके चलेंगे, यह है आमा बैंक सर्विस, कहां की स्कीम, कहां की? ओडिशा की। तो दोस्तों नेक्स्ट और आज की आखिरी न्यूज़ क्या है? गुजरात ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक MOU साइन किया ताकि एयरपोर्ट्स को, नए एयरपोर्ट्स को बनाया जा सके इन गुजरात, राइट। सिंपल एंड ईजी। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। अब आ जाते हैं क्विक 1 लाइनर रिवीजन पर। निर्मला सीतारमन मैम एंड 3 अदर इंडियन वीमेंस, इनको फीचर किया गया फोर्ब्स 2023 वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वीमेन की लिस्ट में। 4 इंडियंस हैं, 4 इंडियन वीमेन है इस लिस्ट में।
यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की रैंक रही 220 इन क्वाकरेली साइमन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी 2024 एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने यहाँ पे टॉप किया। देन डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई एंड इंडिया काउंटेड फॉर 66% ऑफ द मलेरिया केसेस इन द डब्ल्यूएचओ साउथ ईस्ट एशियन रीजन इन 2022। AIIB एंड यूएनडीपी ने साइन किया एक MOU फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने रिसीव किया ऑर्डर वर्थ 3,915 करोड़ रुपीज। CII प्रोजेक्टेड इंडिया GDP टू ग्रो एट 6.8%। रेक्स करमवीर ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया बी एंड चक्र अवार्ड से प्रेजेंट किया गया ड्यूरिंग द 12th एडिशन ऑफ द एनुअल रेक्स कॉन्क्लेव। नेक्स्ट 10 BJP MPs इंक्लूडिंग 2 मिनिस्टर्स इन्होंने रिजाइन कर दिया फ्रॉम द पार्लियामेंट आफ्टर विनिंग स्टेट इलेक्शंस। गवर्नमेंट सेल कर रही है अपना 8% स्टेक इन अर्कॉन इंटरनेशनल थ्रू ऑफर फॉर सेल। अंबुजा सीमेंट ने कंप्लीट किया एक्विजिशन ऑफ शांगी इंडस्ट्रीज जो कि गुजरात बेस्ड इंडस्ट्री है फॉर 5,185 करोड़ रुपीज। एनिमी प्रॉपर्टीज शेयर वर 2,709 करोड़ रुपीज डिस्पोज की गई थ्रू ई ऑक्शन। गूगल ने लॉन्च किया अपना लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कैपेबल AI मॉडल जेमिनी। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे 7 दिसंबर को एंड ओडिशा के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया आमा बैंक स्कीम टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज इन अनबैंक्ड ग्राम पंचायत। एंड गुजरात एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्होंने साइन किया एक MOU टू डेवलप एयरपोर्ट्स इन द गुजरात स्टेट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे जो कि आपकी लर्निंग में काफी बेनिफिशियल रहेगा। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स रिसेंटली गॉट GI टैग फ्रॉम उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट से अभी कितने प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला, और ये हाईएस्ट एवर है कि एक दिन में इतने प्रोडक्ट्स को किसी भी जगह से GI टैग मिला है। तो 18 प्रोडक्ट्स को यहाँ पर अभी GI टैग मिला। इन 18 प्रोडक्ट्स से अगर हम बात करें तो 13 तो एग्रीकल्चर गुड्स रहेंगे, 4 हैंडीक्राफ्ट गुड्स रहेंगे, 1 फूड स्टफ रहेगा और 1 मैन्युफैक्चर्ड गुड रहेगा, जिसको यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी GI टैग से सम्मानित किया गया। और उत्तराखंड के ये प्रोडक्ट्स रहेंगे जिनको GI टैग मिला। एंड ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स को 18 प्रोडक्ट्स को एक ही दिन में GI टैग से सम्मानित किया गया हो। अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें उत्तराखंड के तो पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन रहेंगे यहाँ पर? जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह। कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है उत्तराखंड की? वो है आपकी देहरादून। और उत्तराखंड में ही एक कंगडाली फेस्टिवल भी होता है, कंगडाली फेस्टिवल भी ऑब्जर्व किया जाता है, ये भी मार्क करेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गेट द हाईएस्ट नंबर ऑफ 18 GI टैग्स इन अ सिंगल डे। एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी इन्होंने ऑफिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड द GI सर्टिफिकेट टू दीज प्रोडक्ट्स। एंड विद दिस 18 न्यू प्रोडक्ट्स द टोटल नंबर ऑफ GI प्रोडक्ट्स इन उत्तराखंड हैज बिकम कितना? ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे डैश। करेक्ट, कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो गए हैं GI प्रोडक्ट्स इन उत्तराखंड? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हम जानते हैं तमिलनाडु में हाईएस्ट, और तमिलनाडु इज द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ GI टैग्स। इसके कितने टैग्स हैं? ये 2 नंबर आप मुझे कमेंट करोगे। उत्तराखंड में कितने प्रोडक्ट्स को GI टैग मिल चुका है अभी तक, और तमिलनाडु में जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट GI टैग्स मिले अभी तक उसमें कितने GI टैग्स दिए गए हैं, वो दोनों चीजें आप मेरे को कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द GIS एप्लीकेशन ग्राम मनचित्रा। ये जो ग्राम मनचित्रा ये एप्लीकेशन है, ये याद रखेंगे किसके द्वारा लॉन्च की गई? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इस एप्लीकेशन के अंडर क्या होगा कि जो भी पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाएगी विलेजेस के लिए, उससे इस पर्टिकुलर ग्राम मनचित्रा से, इस एप्लीकेशन से, इस GIS एप्लीकेशन से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उनको एनालिसिस करने में, बेटर डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, GIS क्या होता है? जोग्राफिकल और जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। तो कपिल मोरेश्वर पाटिल इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया आपका जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन ग्राम मनचित्रा। एंड ये एंकरेज कर रहा है टू टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्पेशल प्लानिंग बाय द ग्राम पंचायत। ये यूटिलाइज करता है जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी टू ऑफर डायनेमिक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फ्रॉम ग्राम पंचायत टू विजुअलाइज एंड प्लान डाइवर्स डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स स्पैनिंग नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर एंड मच मोर। ठीक है, एंड ये जो ग्राम मनचित्रा है ये सर्व करेगा एज अ पोर्टल सिस्टम फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, कि जो भी आप ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट प्लान होंगे उनमें एक सहयोग की तरह उसमें हेल्प करेगा, ताकि जो भी ग्राम पंचायत के लोग हैं उनको डिसीजन मेकिंग में बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को? BESS कंसोर्टियम को ज्वाइन करने वाली वो कंट्री कौन सी बन गई है? तो याद रखेंगे अभी 11 कंट्रीज ने ज्वाइन किया है COP28 के दौरान, जो कि दुबई UAE में हो रही है।
करेक्ट। तो इसके दौरान 11 कंट्रीज में से ज्वाइन किया, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखना है वो क्या है, हमारी इंडिया, राइट। इंडिया वो कंट्री बनी जिन्होंने अभी बीईएस कंसोर्टियम को ज्वाइन करा है, ठीक है। इससे क्या होगा, यहां पर याद रखेंगे सबसे पहले कि ड्यूरिंग 2023 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो कि COP28 हुई, इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ दिस बीईएस कंसोर्टियम। इट वाज लेड बाय ग्लोबल लीडरशिप काउंसिल GLC ऑफ द ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट, राइट। फिर यहीं पे याद रखेंगे ये जो आपकी COP28 थी दुबई UAE में हुई, 30 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक ये चल रही है। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि 11 कंट्रीज को ज्वाइन किया गया था, 11 कंट्रीज बल्कि इनका पार्ट बनी, जिसमें से एक हमारी इंडिया रहेगी। एंड जो BESS कंसोर्टियम है ना, इनका एक टारगेट है, इन्होंने कमेंट किया हुआ है कि हम 5 गीगावाट ऑफ BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को अचीव कर लेंगे बाय द एंड ऑफ 2024। Apart from this, 90 gigawatt of storage capacity must be developed to achieve the estimated 400 gigawatt of renewable energy required to elevate the energy poverty by 2030 and save a gigaton of carbon dioxide। अगर हमें ये बचाना है तो हमें एक तो देखो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पॉल्यूशन ना फैले एटमॉस्फेयर में, तो जिस तरीके से हम एनर्जी डेवलप कर रहे हैं ना, हमें वो चेंज करना पड़ेगा। हमें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा, और उसी की ट्रांजिशन की यहाँ पे ये बात की जा रही है, करेक्ट। तो मार्क करके चलेंगे, इंडिया अभी मेंबर बन गया है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कंसोर्टियम का। नेक्स्ट, फिर अगर हम बात करें इंडियाज एफर्ट्स टुवर्ड BESS, ये क्या है, सबसे पहले तो याद रखेंगे गवर्नमेंट जो भी आप अलग से इनिशिएटिव लाते हैं, जो भी आप प्लेटफॉर्म लाते हैं कि हम यहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, हम सो एंड सो अपना खुद का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट खुद से फंडिंग प्रोवाइड करेगी, एक तो चीज़। फिर यहाँ पे याद रखेंगे इंडीग्रिड, ये इंडिया का पहला पावर सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है दैट वाज अवॉर्डेड विद द फर्स्ट BESS प्रोजेक्ट टू डिजाइन, सप्लाई, टेस्ट, इंस्टॉल, कमीशन, ऑपरेट, मेंटेन अ 20 मेगावाट इन दिल्ली, राइट। फिर इसी के अलावा GEAPP, ये क्या था, अभी हमने देखा था कि ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट। तो GEAPP ये प्रोवाइड करेगा कंसेशनल डेट फाइनेंसिंग फॉर 70% ऑफ द टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर द प्रोजेक्ट। मतलब जो भी प्रोजेक्ट में आपकी डिमांड होगी ना, जितने का भी प्रोजेक्ट होगा, उसका 70% तक फाइनेंस आपका ये GEAPP भी कर देगा, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया वेरियस इनिशिएटिव्स टू एड्रेस मीथेन एमिशंस ग्लोबली। तो कौन सा है, वो है वर्ल्ड बैंक, राइट। मीथेन एमिशंस को, मीथेन होता है CH4, राइट। मीथेन को ग्लोबली रोकने के लिए, उसके एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं ये क्या है, पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, इससे आपका क्या है, कार्बन एटमॉस्फेयर में जाएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि कार्बन हीट को ट्रैप कर लेता है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हीट को ट्रैप कर लेती है, तो अगर कार्बन एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि इससे पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट होगा। तो इसीलिए एमिशन, मीथेन के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी यहाँ पे वेरियस इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए। इन्हीं के द्वारा अभी एक 18 मंथ का ब्लूप्रिंट भी लॉन्च किया गया फॉर मीथेन रिडक्शन, ठीक है। इन्हीं के द्वारा 15 नेशनल प्रोग्राम्स को भी लॉन्च किया गया ताकि मीथेन को रिड्यूस किया जा सके। ये जो प्रपोजल्स थे COP28 के दौरान ही लॉन्च किए गए, करेक्ट, जो कि दुबई UAE में हो रही है। अगर फिर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो अजय बंगा यहाँ के प्रेसिडेंट, हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका, वॉशिंगटन DC में, एंड 1944 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक लॉन्च कर रहा है 18 मंथ लॉन्ग ब्लूप्रिंट फॉर मीथेन रिडक्शन, 15 नेशनल प्रोग्राम्स इन्होंने लॉन्च किए, एंड द प्रपोजल्स वर लॉन्च्ड एट द COP28 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि दुबई UAE में हुआ फ्रॉम 30 to 12 दिसंबर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा अभी इंट्रोड्यूस किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा परिवार अकाउंट फॉर सेविंग एंड करंट अकाउंट। तो अभी हम कह सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा अभी एक सेविंग और एक करंट अकाउंट लॉन्च किया गया है, राइट। एंड ये है माई फैमिली माई बैंक सेगमेंट वॉज लॉन्च अंडर द बैंक ऑफ बड़ौदा के संग त्योहारों की उमंग फेस्टिव कैंपेन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। फिर यहीं पे याद रखेंगे ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, करेक्ट, the accounts under this Bank of Baroda परिवार account will be operated independently by the primary account holder। फिर यहाँ पे जो सेविंग अकाउंट का सेगमेंट है, राइट, इज ओपन टू अ फैमिली ऑफ अ मिनिमम ऑफ 2 members एंड अ मैक्सिमम ऑफ 6 members। जो करंट अकाउंट सेगमेंट है, इट इज ओपन फॉर पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज विच आर ग्रुप कंपनीज और सिस्टर कंपनीज, करेक्ट। नेक्स्ट,
HDFC बैंक ने भी पार्टनर किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू लॉन्च अ न्यू क्रेडिट कार्ड। तो HDFC बैंक ने अभी टाटा न्यू के साथ पार्टनरशिप की ताकि एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जा सके जो कि है आपका टाटा न्यू HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। इसको पावर किया जाएगा रुपे एंड वीजा से। किससे पावर किया जाएगा? रुपे एंड वीजा से इसको पावर करा जाएगा। राइट, दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है, टाटा न्यू इन्फिनिटी HDFC कार्ड एंड टाटा न्यू प्लस HDFC क्रेडिट कार्ड। ये दो कैटेगरीज में यहाँ पे लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। टाटा न्यू की बात करें, ये काफ़ी फेमस ऐप है, इसको टाटा की सुपर ऐप के नाम से भी जाना जाता है। दिस ऐप वाज लॉन्च ऑन 7 अप्रैल 2022 एंड टाटा न्यू ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, बुक फ्लाइट कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। राइट, और इसके बदले में टाटा न्यू ऐप आपको न्यू कॉइन्स देती है और एक न्यू कॉइन आपके ₹1 के बराबर होता है जो कि आप इसी एप्लीकेशन में रिडीम कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल अफेयर्स की। इसमें हम बात करेंगे 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की। कहाँ पर हुआ था? गोवा में हुआ। 20 से लेके 28 नवंबर तक हमने इसको ऑब्जर्व किया। राइट, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है? एक तो ये 54th एडिशन है, दूसरा याद रखना है कि ये कहाँ पर हुआ? गोवा में हुआ। राइट, किसके द्वारा कराया गया था, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था, ये भी याद रखेंगे। NFDC नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अलॉन्ग विद ESG इन्वायरमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा जो कि गवर्नमेंट ऑफ गोवा के अंडर आती है, इन दोनों के द्वारा मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। करेक्ट। एंड गोवा की बात करें तो 37वें नेशनल गेम्स भी यहीं पर हुए थे एंड महाराष्ट्र ने यहाँ पे टॉप किया था। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे इस इवेंट के दौरान, इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान जो कि 54th एडिशन था, अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया 17th एडिशन ऑफ द फिल्म बाजार एज वेल एज VFX एंड टेक पवेलियन को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया। और इसी के साथ साथ एक चैलेंज भी लॉन्च किया गया 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो। तो तीन चीज़ हो गई, 17वां एडिशन ऑफ द फिल्म बाजार, VFX एंड टेक पवेलियन एंड 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, ये चैलेंज को यहाँ पे लॉन्च किया गया। पहली चीज़। दूसरी चीज़ याद रखेंगे माधुरी दीक्षित जो कि पद्मश्री अवॉर्डी हैं एंड काफ़ी फेमस इंडियन एक्ट्रेस हैं, इनको यहाँ पे ऑनर किया गया विद स्पेशल रिकॉग्निशन टू भारतीय सिनेमा अवार्ड फॉर हर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड। ये अवार्ड दिया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि आपकी आर्मी से रिलेटेड हो, एयरफोर्स से रिलेटेड हो या इंडियन नेवी से रिलेटेड हो, या फिर वो इंडियन नेवी की, जैसे अगर हम बात करें प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड इंडियन नेवी को दिया गया था। जो सबसे पहला प्रेसिडेंट कलर अवार्ड था इंडियन नेवी को दिया गया था। राइट, एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे 1951 में दिया गया था बाय देन प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी। अब देखो ये प्रेसिडेंट का कलर अवार्ड क्या होता है? जिन्होंने अपना सर्विस दिया हो टू इंडिया। राइट, ये काफ़ी टाइम तक उन्होंने सर्विस किया हो टू इंडिया की, जैसे जो फोर्सेस होते हैं उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको इंडियन नेवल शिप्स को दे सकते हैं, किसी बटालियन को दे सकते हैं, किसी एयरक्राफ्ट को दे सकते हैं। राइट, जिन्होंने अपनी सर्विस दी हो टू इंडिया। राइट, तो अभी रिसेंटली याद रखेंगे एक इंस्टीट्यूशन है जो कि है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज एट पुणे महाराष्ट्र, इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से। किसके द्वारा दिया गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा। राइट, मार्क करेंगे। एंड टू कमेमोरेट द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेजेस प्लेटिनम जुबली ईयर, इनके द्वारा यहाँ पर एक कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ 75 रुपीज़ ये भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था। एंड इसी के साथ साथ इन्होंने एक चीज़ और इनॉग्रेट की, वो है प्राजना। ये क्या है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑल्सो इनॉग्रेटेड द आर्म्ड फोर्सेस सेंटर फॉर कॉम्पिटिशनल मेडिसिन जो कि है प्राजना। ये चीज़ भी यहाँ पे इनके द्वारा इनॉग्रेट की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी रिसेंटली इंडिया टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया 2023 इस लिस्ट को रिलीज़ किया गया कि मिलेनियम जो कि 2000 के बाद यहाँ पे जो सेल्फ मेड मिलेनियर्स हैं उनकी यहाँ पे बात की जाएगी। एंड टॉप 20 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज को इसमें लिस्ट किया गया था, उनको जो फाउंड किया गया। फिर यहाँ पे याद रखेंगे इस लिस्ट को टॉप किसने किया गया? डी मार्ट के ओनर राधा कृष्णन दमानी जी के द्वारा इसको टॉप किया गया। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। इनकी जो नेट वैल्यू निकल के आई वो है 2.38 लाख करोड़ रुपीस। राइट, तो राधा कृष्णन एस दमानी जी जो कि फाउंडर हैं एवेन्यू सुपरमार्केट लिमिटेड डी मार्ट के, इन्होंने टॉप किया। पहला एडिशन था इसका, या फिर हम बोले इनॉग्रल एडिशन था, इंडिया टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया 2023 की लिस्ट। ये रिलीज की गई फर्स्ट प्राइवेट जो कि है IDFC फर्स्ट बैंक एंड ह्यूरन इंडिया के द्वारा मिलकर।
राइट। यहीं पे देखेंगे जो ये लिस्ट है ये क्या है, 200 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की इन इंडिया फाउंडेड आफ्टर द मिलेनियम ईयर 2000, एंड ये कंप्राइज करती है 405 फाउंडर्स की लिस्ट को। एंड इसमें से टॉप किसने किया है, वो किया है राधा कृष्ण दमानी जी के द्वारा। हीरोइन इंडिया की बात करें तो अनस रहमान जुनैद इन्होंने टॉप किया है, और सॉरी ये यहाँ के फाउंडर रहेंगे हीरोइन इंडिया के। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, इसको एस्टेब्लिश किया गया 2012 में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो एमडी एंड सीईओ कौन रहेंगे, वी वैद्यनाथन, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, एंड इसको एस्टेब्लिश किया गया 2018 में। टैगलाइन क्या रहेगी, ऑलवेज यू फर्स्ट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं फिर कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड। इनके द्वारा अभी 3 नए शिप्स को लॉन्च किया गया है, राइट, ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। ये 3 नए शिप्स रहेंगे, आईएनएस माही, आईएनएस मलवान एंड आईएनएस मंगरोल, राइट। कोची केरला में इनको लॉन्च किया गया एंड ये डिलीवर किए जाएंगे टू इंडियन नेवी। तो ये 3 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट रहेंगे, राइट, एंड इन तीनों को अभी डिलीवर किया जाएगा टू इंडियन नेवी। बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा, डिलीवर किया जाएगा कोची यार्ड में जो कि केरला में है टू इंडियन नेवी। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, विच कंट्री हैज फ्रेम्ड वन प्रोविंस वन पॉलिसी प्लान टू हैंडल फाइनेंशियल रिस्क। सेकेंड, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री। और तीसरा, what is the name of the largest survey vessel built in India which was recently delivered by GRSC। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो वीडियो देखते हैं। एंड अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो मैं चाहता हूँ आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके क्या व्यूज़ हैं इन सेशन से रिलेटेड। So that's all for the day. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.